chapter 14. Uncle, your voice is There breaking. we have. Uncle, You can hear. it is not clear. Should I change the phone? Yes, that would be better. Yes, if you can do that. Hope it is clear now. Yes, yes, Uncle, clear. Okay. Today we are going to see few things from Matthew's Gospel, chapter 14. And this chapter is important because of the great miracle Jesus did, feeding 5,000 men and their families with 5 loaves and 2 fish. This story is, this miracle is found in all the 4 Gospels. And this is the only miracle which is recorded by all the 4 Gospel writers. Matthew chapter 14, Mark's Gospel chapter 6, Luke's Gospel chapter 9, John's Gospel chapter 6. But next time we will be seeing few things from John's Gospel. So today we will concentrate in Matthew's Gospel. मत्ती का सुवार्ता 14वां अध्याय इसलिए प्रसिद्ध है, इसमें हम यीशु मसीह 5,000 पुरुषों को और उनका परिवारों को 5 रोटी से और 2 मछली से खिलाया। ये पूरा अध्याय पढ़ेगा तो if you read the whole chapter, we see another incident here. So I want to say that there are 2 children here. First one is this boy. Second one is this boy. We read about him in John's Gospel chapter 6, verse 9. From where did Jesus get this 5 loaves? John's Gospel chapter 6, verse 9. There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. John 6, 9. There is a lad here which has 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? यहाँ एक लड़का है जिसके पास जबकि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? इसलिए यीशु ये चमत्कार इसलिए किया है, ये लड़का उनके पास जो 5 रोटियां था ये यीशु के हाथों में दिया। उसके बारे में बाद में हम देखेंगे। उसके पहले जो घटना है उधर एक लड़की के बारे में हम पढ़ते हैं 6वां कलम में, मैथ्यू's Gospel 14 verse 6. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod.
तो एक लड़की के बारे में हम पढ़ते हैं। हेरोद का जन्मदिन आया तो हेरोदिया की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसका परिणाम क्या हो गया बाद में हम देखते हैं। बिकॉज ऑफ द फूलिश डिसीजन, बिकॉज ऑफ द wickedness of her mother, this girl asked for John the Baptist's head, as if there was nothing else to be asked. ऐसा दुनिया में पृथ्वी के ऊपर मांगने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा ये लड़की उसका मां के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर को मांगा है, और मतलब उसका हत्या हुआ। चलिए, पहला एक लड़की क्या किया, उस लड़की के कारण प्रभु का एक बड़ा दास का हत्या, उसका नाश। हम थोड़ा कुछ बातें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सुना, इधर कैसा उसका अंत हुआ उसके बारे में लिखा है। अभी मैं इसमें जाने वाला नहीं हूं, पर ये अध्याय के अंदर ऐसा दो बच्चों के बारे में, we read of two children, a bad, because of mother's influence and wickedness, a great servant of God's life ended. On the other side, we read about a boy, because he was prepared to give what he had to the Lord, God blessed it and it was used for the glory of God, and Jesus could do a great miracle. इधर हम दो बच्चों के बारे में देखते हैं। Sorry to interrupt. You can switch off your video because your voice. Can you switch off your video, uncle, please? Okay. It is breaking. The sound is breaking. It is off. You can hear? Uncle, it was not clear. Can you speak now? Can you hear? Yes. Now it is better. Okay. चलिए, इधर दो बच्चों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक खराब लड़की, खराब माँ का बेटी, और उसके माँ के प्रेरणा के द्वारा प्रभु का बड़ा दास का जीवन को ले लिया। दूसरा एक लड़का, उनके हाथ में जो था 5 रोटी यीशु के हाथों में दिया, उसका यीशु का बहुत बड़ा एक चमत्कार किया। हम आज इसके साथ जो घटना हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। 14 से लेके 21 तक, 21 तक, ये मिरेकल के बारे में, ये चमत्कार के बारे में हम पढ़ते हैं। 5 रोटी से प्रभु इतना बड़ा एक जुगो, how Jesus, so many people, we can say more than 25,000 people fed these people. Second part is 22 to 25. Jesus goes to the mountain. He sends the disciples to the other shore of Tiberias. Then there was strong wind and wave.
and Jesus came towards the morning. Then how he rescued them. That is what we read in the second part. Third part, 25 onwards, how Jesus came to them and what all other miracles happened. So altogether in this chapter, there are 5 miracles. Okay, 5 miracles in this chapter. First one is feeding 5,000 men and their families. Second miracle is verse 25, Jesus walking on the water. Verse 25 we read, now in the 4th watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Then 29, we read Peter walked on the water. पत्रोस पानी के ऊपर चलता था. और दुनिया में यीशु के अलावा एक ही आदमी पानी के ऊपर चला है, वो पत्रोस. कई बार हम पत्रोस को ऐसा बोलते हैं, he was a hasty man. कई बार जीवन में बहुत हेस्टीनेस दिखाया, फिर भी इधर ये पानी के ऊपर बाकी शिष्य लोग चलने के लिए तैयार नहीं था, पत्रोस तैयार था. ये तीसरा मिरेकल है इस अध्याय के अंदर. 31 में we read about the 4th miracle, that is Peter got drowned, Jesus rescued him. पत्रोस डूब रहा था, उस पत्रोस को प्रभु ने डूबने से बचाया. आखिरी मिरेकल है यीशु आंधी को, तूफान को थमा दिया, शांत कर दिया. So altogether we have 5 miracles in this chapter. Feeding 5,000 men and their families, Jesus walking on the water, Peter walking on the water, Jesus rescuing the drowning Peter, then Jesus is calming the wind and the sea. So 5 miracles we have. But the earlier portion, from verse 22 onwards, we read here like this. Linson, will you be able to bring it to the screen? Matthew chapter 14, 22 onwards. Yeah. Can you see, uncle? Matthew 14, 22 onwards. Yeah. Can you see, uncle? No, it is not there. Uh, Your photo is visible. You can be seen. no, I have shared only. 1 second. Let me reshare. 1 second. Is it visible now? Now it is there. Okay. Matthew 14, 22 onwards. Yeah. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and go before him unto the other side, while he sent the multitude away. Jesus compelled his disciples. लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर गया. Okay. 22. Okay, we will go one by one. Straight away, Jesus constrained his disciples, compelled his disciples to get into a ship and to go before him and to the other side.
Why did he compel them? Matthew did not mention what happened after the miracle. That John tells us. So we will just go to John's Gospel chapter 6 once again and see what happened after the miracle. Verse 15, 6:15. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into the mountain himself alone. इधर हम देखते हैं इसका कारण, उनको जबरदस्ती उनका शिष्यों को भेजना था समुद्र के उस पार जाने के लिए। उसका कारण इधर है। कारण क्या है? चमत्कार देखने के बाद लोग सब इकट्ठा होके बोला, बहुत बड़ा भीड़ है, कम से कम 25,000 लोग इधर है, इन लोग यीशु को पकड़ के राजा बनाना चाहता, मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती उसको राजा बनाने के लिए लोग प्लान बना रहा है। जब शिष्य लोग ये सुना, उन लोग क्या बोला होगा, क्या सोचा होगा? इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और शिष्य एक दूसरे के साथ शायद ऐसा बोलना शुरू किया, चलो चलो हम प्रभु को बोलेंगे, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। अभी यीशु राजा बन जाएगा तो पत्रोस प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है। इसके लिए सब है ना एक दूसरे के साथ बात करता था। ये सब देखे यीशु उनको थोड़ा धक्का देके जबरदस्ती बाय फोर्स he wanted to send them to the other side of the sea. अभी यीशु इधर क्यों इनकार किया? यीशु खुद पहाड़ के ऊपर गया। यीशु क्यों उधर गया? उसका दूसरा कारण। अभी यीशु इस विषय के बारे में पिता के साथ बात करना चाहता था। मैं इस दुनिया में एक मुकुट लेने के लिए नहीं आया, क्रूस लेने के लिए आया। I have come here not to take the crown, but I have come to take the cross. अभी लोग जबरदस्ती उनको पकड़ के राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए यीशु पहाड़ के ऊपर जाके और एक बार अपना पिता से बात कर रहा है। पिता, मैं जो उद्देश्य के साथ दुनिया में आया है वो पूरा करने के लिए मुझको कृपा दो। और शिष्य लोग ये सुन गए, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, अभी यीशु राजा बन जाएंगे, इसके बारे में उन लोग सोचते हैं। अभी उनको भी समझाने का है, इसलिए यीशु वो पहाड़ के ऊपर चला गया। इधर एक बात हमको समझना है, यीशु को कोई मनुष्य और सब लोग मिलके राजा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। वो खुद राजा है, केवल राजा नहीं है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। There is no need for people to make him king. He is already a king. He is not only just a king, he is the King of Kings and the Lord of Lords. But there is an appointed time he will come back as the King of Kings to rule here in this world. But in his first coming, he did not come here
to receive the crown. He came to receive the cross. For him, cross was more important than the crown now. That's why he decided to go to the mountain. He decided to send his disciples to the other shore. And rest of the verses, Matthew's Gospel chapter 14, 23 onwards, we read here the church history, 2000 years of church history in a nutshell. संक्षिप्त रूप में हम 2000 साल का मंडली का इतिहास इधर देख सकते हैं। पहला बात है यीशु मसीह इधर से पिता के पास चले जाते हैं। जैसा हमारा यीशु प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में, पहला अध्याय में स्वर्ग चला गया, इसका एक चित्र इधर है। यीशु अकेला ऊपर चला गया, दूसरा कोई उनके साथ नहीं गया, यीशु उधर गया। यीशु उधर प्रार्थना करने के लिए गया, मध्यस्थता करने के लिए गया, हमारा महायाजक बन के गया। यीशु उधर स्वर्ग में है। दूसरा बात हम 23 में देखते हैं, he went up on a mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. यीशु अकेला उधर था। 24 verse 24, में हम पढ़ते हैं, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. उसके ऊपर हमने देखा है, ये जो पहला घटना है, यीशु अकेला स्वर्ग चले जाते हैं, और दूसरा है यीशु अपना शिष्यों को समुद्र के उस पार भेजते हैं। जीसस इज सेंडिंग हिज डिसाइपल्स टू द अदर साइड। ये क्या बताता है? यीशु मसीह इधर से जाते समय में अपना शिष्यों को सारे जगत में भेजता है। मत्ती का सुवार्ता 28वां अध्याय 19वां कलम हमको याद है। यीशु बता रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर 18 से स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझको मिला है, इसलिए चले जाओ, सारे जगत में जाओ, सबको मेरा शिष्य बनाओ। ये बोल के यीशु अपने शिष्यों को सारे दुनिया में भेजते हैं। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. सारे जगत में जाओ, सबको मेरा शिष्य बनाओ और शिष्यों को बपतिस्मा दे दो, और जो कुछ मैं तुमको सिखाया उनको भी सिखाओ। इसके लिए यीशु भेज। चलिए दूसरा चर्च हिस्ट्री का दूसरा बात है, यीशु अपना शिष्य दुनिया में भेजा। तीसरा बात 24 में हम जो देखा है, उन लोग समुद्र के बीच 24 are tossed by the waves, for the wind was contrary. But the ship was now in the midst of the sea, for the wind, उसे नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और इधर उन लोग समुद्र में हैं और उधर लहरों है, और आगे पीछे लहरों उसको लेके जा रहे हैं, काम भी नहीं पहुंचता है, अंधेरा है, कुछ देख नहीं सकता है। और
मंडली का इतिहास है। कई समस्याओं के बीच में मंडली आया, एक रात में आगे कुछ ज्यादा देख, ऐसा अनुभव में। और आखिरी में 25 में हम पढ़ते हैं, of the night Jesus went to them walking on the sea. 25, and in the fourth watch of the night Jesus went unto them walking on the sea. रात के 14 पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। मैं संडे को बोला था ये पौरों के बारे में, और ये 14 पहर है, 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम। पूरा रात उन लोग ये समुद्र में लहरों के बीच में था, और जब सुबह नजदीक आ रहा था, सूर्य का उदय होने वाला था, तब यीशु आया। ये क्या बताता है? यीशु जब आएगा हमारा रात खत्म हो जाएंगे, हमारा परेशानियां दूर हो जाएंगे, हमारा जीवन का समस्याएं दूर हो जाएंगे। सूर्य का उदय यीशु मसीह सारा अंधेरा को निकालेंगे, अशांति को निकालेंगे, वो हमारे साथ मिलेंगे, हम पूरा शांति महसूस करेंगे। चलिए घटनाएं ये भाग में जो है मैं बोलना चाहता हूं, ये मंडली का इतिहास एक संक्षिप्त रूप में है। So here we see 4 things. Jesus is going to the mountain. Second, he sends the disciples to the other side. Third, the disciples were in the midst of the sea, tossed by the waves, and the wind was contrary. Fourth, in the fourth watch, Jesus comes and all the troubles and disturbances and problems removed, and light started shining. So the church is passing through darkness, but at the end we are going to see the light. The Lord Jesus is going to appear. The Son, the Lord Jesus Christ, he will rise. All the darkness will go away and he will be freed from all problems and difficulties. Now we come to the first part, feeding 5,000 men and their families. So here we see some spiritual truth from this passage. First thing, we read about this 5 loaves, verse 70. 17 कलम में हम देखते हैं, they said to him, we have here only 5 loaves and 2 fish. We have here but 5 loaves and 2 fish. उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है. So what is the truth here? What you have is what he wants. Jesus had to feed a great number of people. What was always satisfying one hunger. But you know, you did not reject that one. What you have is small or big. Jesus is. So what you have? So when Jesus was here,
we look to life. At his birth needed a man. Somebody provided that. Then for traveling he needed a boat. We know that when he wanted to preach, he got into the boat Peter. पत्रोस के नाम में उसके बाद हम देख कब्र होने के लिए एक वो बैठा था उद्धार के उसके लिए, और उसको यरूशलेम जाने के लिए एक गधा का जरूरत था. Somebody provided that. एक गधा को उसको सवार करने के लिए दिया है. आखिरी में उसको दफन के लिए कब्र का जरूरत थी. अरिमतिया का तैयार. चलिए, the truth is this: what you have is what he wants. What do we have? The people may say that we don't have anything. We all have something. We have a good body. We have a good mind, and some money we have, some talents we have, time we have. ऐसा बहुत बातें हमारे पास है. सब बातों से बढ़कर यीशु चाहता है हम हमारा जीवन को हाथ में देना. मैं एक बार बोला था हडसन टेलर के बारे में. चाइना देखा हुआ एक बहुत परिवार से आया और एक दिन उसमें ऑफरिंग ले, उसके पास कुछ नहीं, इसलिए उधर एक प्लेट के अंदर ऑफरिंग लेता था. जब मैं छोटा था हमारे चर्च में भी ऑफरिंग बैग नहीं था, एक प्लेट था. प्लेट में लोग पैसा डालता था. चलिए उस जमाने में ऐसा ही था. चलिए जब ये ऑफरिंग का प्लेट उसके पास आया, ये लड़का क्या किया, वो प्लेट हाथ में लिया, नीचे रहा, वो उसके अंदर बैठ गए. आजू में बैठा हुआ बहुत गुस्सा, ये लड़का को क्या हो गया, क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग. बट यू नो, हडसन टेलर वाज मेकिंग ए बिग प्रेयर. यू नो व्हाट वाज दैट प्रेयर? प्रभु मेरे पास आपको देने के कुछ नहीं है, फिर मैं मुझको अपने आप को मैं पूरा आपके लिए देता हूं. प्रभु प्रार्थना सुन लिया, वो बच्चा बड़ा हो गया, बाद में प्रभु को स्वीकार किया. बाद में उसके अंदर प्रभु ने ऐसा मिशनरी बनने का बोझ डाला है. चाइना में गया, चाइना इनलैंड मिशन उसके द्वारा शुरू हो गया. इसलिए हमारे पास कुछ है, हमारा जीवन है, हमारा समय है, हमारा पढ़ाई है, हमारा पैसा है, वो सब प्रभु चाहता है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट ट्रूथ? जो आपके पास है वो प्रभु चाहिए. ये लड़का कभी भी ये 5 रोटी से दूसरे को भी खिला नहीं सकता है. ये 5 रोटी प्रभु के हाथ में हजारों को उनका भूख मिटाने के लिए. पर से हमको क्या सीखने का है? What you can do, you do. What you cannot, God will do. हम कर सकते हुए बातें हम करना है, हम नहीं कर सकते बातें प्रभु हमारे लिए करेगा. ये हमको समझने का है. देखो, एक व्यक्ति को हम विश्वास में ला नहीं सकता है, हम जरूर उसको सुवार्ता दे सकता है, उसको एक ट्रैक्ट दे सकता है, एक पुस्तक दे सकता है, ये नया नियम खरीद के दे सकता है,
उसको एक मीटिंग में बुला सकते हैं। ऐसा बहुत बातें हमको कर सकते हैं, बाहर का काम। इसलिए इसके बारे में मैं ऐसा बोलता हूं, सुवार्ता देना हमारा काम है, विश्वास करना सुनने वालों का काम है, और सुनने वालों को बचाना प्रभु का काम। ये तीनों हमको नहीं कर, हमको पहला बात ही बराबर जितना प्रभु हमको कहा दिया, प्रार्थना पूर्वक प्रभु के बारे में दूसरे को बना, जितना हम कर सकते हैं बहुत प्रार्थना पूर्वक हम किया, बाकी तो उनका और प्रभु के बीच में है। उसके लिए मैं एक दृष्टांत, जैसा है ना, 20 साल उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी हॉस्पिटल में आया, 5 मिनट के हम शायद पानी नहीं लिया हो, उसके अंदर दे दिया, वो चला गया, भी कुछ मालूम है क्या हुआ। अंकल, और मैं उनको, uncle, your sound has totally gone. I mean, completely breaking. For the last few minutes, some little was coming. Now it is totally breaking. अभी सुन सकते, अभी थोड़ा 1-2 वर्ड आया, बाकी नहीं आया। अभी सुन सकता है? हाँ, अभी एकदम क्लियर। कैन यू हियर? यस यस। ओके ओके ओके। इसलिए पहला काम हमारा है दूसरों को सुवार्ता देना, एक पत्रिका देना, एक नया नियम देना, कुछ अच्छा पुस्तक यीशु का बारे में, उद्धार के में दूसरों को देना काम। और लोग विश्वास करें ना करें उनका मर्जी का बात है, यदि विश्वास करने के लिए उनको बचाना प्रभु का काम, ये हमको समझने का है। चलिए इधर हम दूसरा सत्य देखते हैं, व्हाट यू कैन डू यू डू, व्हाट वी कैन नॉट डू गॉड विल डू। हम व्यक्ति को बचा नहीं सकता है, बचाता है। ओके, सेकंड रूल, थर्ड 18 कलम में वर्स 14 का 18, इधर ऐसा लिखा है, जीसस सेड ब्रिंग देम हियर टू मी। उसने कहा उनको यहां मेरे पास ले आओ। अभी आप समझ लो, आपको 10,000 रुपए का जरूरत है, और एक आदमी को बोला वो आपको नहीं 10 रुपया निकालता है, आपका प्रतिक्रिया होगा? Uncle, it is again very bad. I think you'll have to change your place. Maybe sit near the window. Is it only problem for me or for others also? For others also. Yes. Yeah. अभी कैसा है? हाँ, अभी अच्छा है। ओके, अभी देख लो, आपको 10,000 रुपया का जरूरत है, आपका एक मित्र के पास गया, उनको बोल दिया ऐसा बहुत बड़ा जरूरत है, थोड़ा मदद करना है, वो 10 रुपया निकाल के आपको देता है, आप क्या करेंगे? यदि मेरे साथ ऐसा है कोई किया तो मैं बोलेंगे आप रख दो, शायद आपको इसका जरूरत भी पड़ेगा, ऐसा बोल के
हम स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रभु बोला ये मेरे पास लेके आओ। बाद में हम क्या पढ़ते हैं, 19 में हम पढ़ते हैं, He took it, वो अपने हाथ में लिया। इधर हम एक बात, तीसरा बात हम देखते हैं, हम जो प्रभु को देते हैं शायद दूसरे लोगों के दृष्टि में वो छोटा रहेगा, फिर भी प्रभु उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। What is given is accepted. प्रभु इसको ये बहुत छोटा है, इससे क्या हो जाएगा ऐसा सोच के इनकार नहीं किया, छोड़ा नहीं है। इतिहास हम पढ़ेगा तो ईश्वर छोटे छोटे लोगों को लिया, बाद में वो बड़ा हो गया। उन लोग ऐसा सब बहुत बड़े बड़े घरों से नहीं आ रहा है। दुनिया का बहुत सेवकों को देखो, उदाहरण के लिए बिली ग्राहम के बारे में, मूडी के बारे में, जैसा मैं बोला है अभी हडसन टेलर के बारे में, उनका सब मिशनरियों का स्टोरी पढ़ेगा तो उनमें से बहुत लोग ऐसा साधारण से साधारण परिवारों से आए, इतना पढ़े लिखे लोग नहीं था, फिर भी कैसा प्रभु के हाथों में उन लोग उपयोगी बन गए। प्रभु किसी को इनकार करना नहीं चाहते। यदि कोई उनके पास आता है, अपना जीवन देने के लिए तैयार है, बाद में उनके पास जो है वो देने के लिए तैयार है, प्रभु उसको बहुत संतोष के साथ स्वीकार करने वाला है। फोर्थ, उसी कलम में 19 में हम पढ़ते हैं, He took the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he blessed it. And the 2 fish, 5 loaves and 2 fish, he took it, and looking up to heaven, he blessed it. यीशु उसको आशीष किया। देखो इधर हमारे जीवन में हमको प्रार्थना करने के लिए एक प्रार्थना का बात है। जैसा आप 5 रोटी को आशीष करके उसको बढ़ाया, वैसा हमारा जीवन को भी ऐसा आशीष करके बढ़ाओ, ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। अब्राहम को ईश्वर बोला, I will bless you so that you may be a blessing. उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, You will be blessed so that you may be a blessing to others. हम दूसरों को आशीष का एक कारण बन जाने के लिए ईश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं। ओके, गॉड ब्लेस्ड इट। उसके बाद हम पढ़ते हैं, He broke it, उसी कलम में He broke it। देखो ये दोनों ये 2 in 1 है। अभी देखो ये दोनों अलग करके हमारे सामने रखे, ब्लेसिंग एंड ब्रेकिंग, आशीष करना, तोड़ना, ये दोनों हमारे सामने रखे, अलग करके रखे, और हमको बोले 2 में से एक तुम चुन सकते हैं। हम सब आशीषी चुनेंगे, ब्रेकिंग हमको नहीं चाहिए। हम फिर ये दोनों साथ में है। यदि प्रभु कोई जीवन को आशीष किया, बाद में प्रभु उस जीवन को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। ये निर्गमन का पुस्तक में हम देख सकते हैं। पहले प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, मिस्र से बाहर निकाला, और 40 साल प्रभु क्या किया, मिस्र को उसके अंदर से बाहर निकाल रहा था। उन लोग मिस्र से बहुत कुछ बातें अपने अंदर उतार के रखा था, उसको निकाल रहा था।
इसलिए हमारे जीवन में भी प्रभु क्या करते हैं, जब हम पहली बार प्रभु के पास आया, हमारा पापों को कबूल किया, प्रभु हमें आशीष किया, और उसके बाद धीमे से प्रभु हमारा जीवन को तोड़ना शुरू किया। ये ब्रेकिंग का अर्थ क्या है? जब है ना हम चपाती खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, उस समय क्या करेंगे हम? ऐसा ही एक चपाती पूरा हमारा मुंह में नहीं जाएगा, हमारा मुंह छोटा है, इसलिए हम उसको तोड़ता है। तोड़ते समय में क्या हो जाएगा? उसका रूप बदल जाएगा। देखो, हम हमारा जीवन को कुछ रूप देके रखा है, हमारा बच्चों का जीवन के लिए कुछ रूप देके रखा है। We have some plans for our life, our children's life. We may think like this: after 10 years, I am going to do like this. After 10 years, this is what I want to my child to be, child to become. ऐसा हम बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं, वो प्लान को शायद ईश्वर तोड़ना चाहते हैं, और ईश्वर बोलेंगे, it is not your plan, my plan. I have a different plan for your life. और प्रभु उसको, हमारा प्लान को तोड़ेंगे, हमें एक नया बनाएंगे। उसी साथ, जैसा मैं पहले बोला, हमारे जीवन में कुछ पुराना बातें हैं, उसको प्रभु एक एक निकालना चाहते हैं। ओके, उसके बाद क्या किया? तोड़ने के बाद प्रभु अपना शिष्यों के पास दिया, शिष्य लोग लेके लोगों को दिया। इधर what is given is accepted, what is accepted is blessed, what is blessed is broken, what is broken is used. So what is blessed and broken is used. यदि हमारा जीवन प्रभु के हाथों में एक उपयोगी जीवन नहीं होता है, उसका कारण यह होगा, you did not allow God to break you. Whenever God wanted to break you, you resisted. नहीं, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना है, मैं ऐसा ही जाना चाहता हूं, इस रीति में जीना चाहता हूं, ये सब मेरे पास रखना चाहता हूं। ऐसा हम प्रभु का विरोध किया, इसलिए प्रभु आगे हमको यूज करना छोड़ दिया। आखिरी बात, इधर जो बाकी आया 20वां कलम में, so they all ate and were filled, they took up the 12 basket full of the fragments that remained. और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। इधर 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बात, God doesn't want anything to be wasted, so he asked his disciples to gather it. That remained, the fragments, he asked them to collect it. So God is not in favor of wasting things, and we have to see whether we waste anything or not. This will be a very surprising thing for all of us. I read it in a book long back. 80% of the things people buy, 80%, they don't use. Only 20% things are used. A believer should be very careful in this area. Okay, second thing, why this 12 basket full? We can think, all these disciples were married men. They were all older than Jesus. At least some of them were older than Jesus. So they all had their families. Now they are about to go back to their home. And probably
There were hungry stomach, other family members. उन लोग भूखे उसके घर में बैठे हैं. इन लोग इधर से जाते समय में एक एक टोकरी लेके जाते हैं. देखो, हमारे आशीषों के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाना प्रभु चाहते हैं. तीसरा बात, ये दिया हुआ लड़का उधर खड़ा है. जैसा मैं शुरुआत में बोला, ये लड़का नहीं है तो ये पूरा अध्याय में वो पहला भाग को छोड़ के बाकी नहीं होता था. ये एक बच्चा के कारण उनके पास जो था वो प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार हुआ. अभी प्रभु उनको पूछ रहा है, मुझको मालूम है तुम एक बच्चा है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 रोटी था, वो पूरा मेरे पास देने के लिए तुम तैयार हो गया. अभी मैं तुमको पूछना चाहता हूं, तुमको कितना चाहिए? लूका का सुवार्ता 6वां अध्याय में एक कलम है, देना और लेने के बारे में है. लूक 6:38. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. With the same measure that you meet, with the same measure it will be measured unto you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. इसलिए प्रभु ये लड़का को बोलना चाहते हैं, मुझको मालूम है तुम्हारे लिए बहुत कठिन था, ये 5 रोटी ऐसा ही मुझको देने के लिए ये बहुत कठिन बात था, पर तुम दिया. अभी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमको कितना वापस चाहिए? प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है. He is no man's debtor. You gave, it will be given to you back. At least in your children's time, 100% sure you will get it back. We have such a faithful God. This verse, Matthew chapter 6, Luke chapter 6 verse 38, Jesus himself said, it is his own words, give and it shall be given unto you. By the same measure you measure, it will be measured unto you. What a faithful God we have. So we have learned some spiritual lessons here. So the first one is, what you have is what he wants. Second, what you can do, you do. What you cannot do, God will do. Third, what is given happily is accepted by the Lord. What is accepted will be blessed by the Lord. What is blessed will be broken by the Lord. What is blessed and broken will be used by the Lord. And give and it shall be given unto you. May the Lord bless these words. I will request Shaji uncle to pray and thereafter take the quiz. Listen, am I audible? Yes, uncle. Yes. आइए प्रार्थना करें. हमारा सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु प्रभु, सुंदर अवसर के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आपके चरणों में इस तरह से की तरह होने के लिए आपने एक और मौका हमारे जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं. जिसे हम प्रतिदिन याद करते हैं प्रभु जी, आपने हम हर एक को आपने किस तरीके से सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी.
भले हम अपने अपने घर में हैं, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमें पता है कि किस तरीके से आपने हमें संपूर्ण सुरक्षा में रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे चारों ओर हम जब देखते हैं कि दुनिया में आज कैसा हो रहा है, हमारे शहर में कैसा हो रहा है, हमारे पड़ोसों में कैसा हो रहा है प्रभु जी, लेकिन आपने हमें और हमारे प्रिय लोगों को दुनिया की हर जगह पर आपने हम उन्हें संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर सुरक्षा की जो दायरा में आपने उनको रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी को फिर से एक बार और आपके समूह में इस तरह से एकत्रित होने के लिए, आपके वचन से सुनने के लिए आपने मदद की, इसलिए धन्यवाद करते। प्रदास को उस तरह से आपने बलवंत किया, आपने आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस जो मिराकल को कई बार हमने देखा है और कई बार हमने उसको पढ़ा भी है, लेकिन हर बार उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने की मौका आप देते, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका मूल्य हम नहीं जानते हैं, या तो हमारे लिए या तो उस दुनिया के लिए वो तुच्छ होंगे, लेकिन प्रभु आपके नजर में वो बहुत बड़ी बात है। और जब हम अपने संपूर्ण दिल से और पूरे खुशी के साथ में और पूरी इच्छा के साथ में हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु के समूह में जब देते हैं और प्रभु उसको स्वीकार करते हैं, और किस तरीके से प्रभु उसको आशीष करके उसको और बहुत गुना और बढ़ा देते हैं, और उसको कितने और लोगों को काम आ पाते। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं जो आपने हमसे बात किया कि कई बार हम भी सोचते हैं हम इस सेवकाई में या तो इन बातों में क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे कुछ भी नहीं है। और लेकिन प्रभु अब कई बार हमें ये हिम्मत और ये आप देते हैं कि जैसे आज भी आपने वचन के द्वारा बात किया, जो कुछ है हमारे पास वो प्रभु के समूह में रखने के लिए, और वो भी अपनी सो इच्छा से पूरे दिल से प्रभु के समूह में जब रखते हैं, उसको किस तरह से प्रभु आशीष करते हैं और किस तरह से अनेक लोगों को वो एक आशीष का कारण बन जाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, और दिया वो समय के लिए धन्यवाद, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद, और हर एक बात को जो आपने अभी तक संभाला और इस टेक्नोलॉजी के साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करते। आमीन।